हम LL1 parsing table, ठीक है. So how the LL1 parser is work? Today we have understand how it's work LL1 parser and how why it is known as a predictive parser. It is a name is the two called in a famous algorithm the LL1 parser or predictive parser because here is a no recursion involved and no backtracking involved. That is a basic funda whatever we have studied in the previous class. Suppose this is the token, that is an input string, and that whatever lexical analyzer is provided take as an input. And this LL1 parser what is the input is taken, it's take the input as a grammar and कैसे ये proceed करता है the decision part taken by the parsing table. And what is a output of a any parser, it's take the input as a input string लेगा, grammar लेगा, and parsing table able to decide कि कैसे वो movement करेगा. That's why the parsing table is a very important. And sometime in your exam ask the construct only parsing table. मतलब आप सोचिए कि in a 5 and 10 marks ask only the construct the parsing table or grammar is given and ask like that कि this particular grammar is the LL1 parser or not. Such kind of questions asked. Okay, जब numerically और some computation based paper का level थोड़ा अच्छा करना होता है, so definitely such kind of question is asked in exam. ठीक है. So here we have a understand fundamentally कि कैसे उसका basic what kind of a step involved to solve this one. Okay. So LL1 parser, that is a top down parser. What is the meaning of this? Is starting from the root and go for the child. ठीक है. तो यहाँ पे input string LL1 parser लेता है as a input. यहाँ पे stack या grammar को भी अपने में involve करता है. Based on a parsing table, it is take the decision. Here is a no backtracking involved. Here no backtracking, no recursion is involved. Okay, it is a predict. How it will be predict? It is a predict with the help of a first and follow. We have already studied what is a first, what is a follow, and also understand how we can calculate this first and how we can calculate the follow. Okay, so there are a 3-step involved. And if this is a parser, that what is the output is produce the parse tree. Okay, if we have a easily derive the parse tree, then there is a that is a indicate that there is a no syntax error. If it is a unable to derive this particular parse tree, that means there is a syntax. Okay. So there is a 3 major step. It's very important. First of all, note it all these things. How it will work. Any parser is given, so please focus. This is a very simple step, but very important. Whenever we have a apply and check the parsing table, that's why we have a bold it also. First calculate the first and follow, and after that parsing table, stack implementation, and after that build up the parse tree. We have implemented all the steps in your Blackboard so that you can easily identify how actually how it will work. Okay, it is a better for your understanding purpose. So here we have a created LL1 parsing table. How it will be created? So here we take the non-terminal. We have a take a grammar. Okay, and all the non-terminal we have written as a column wise. All the terminal written is as a row wise. And based on a first and follow, we can fill up this particular table. We have already discussed. If you have anybody, I have already uploaded that particular content at my YouTube channel. So please subscribe and see that particular video. It's a very benefit. And how it will free? That is, we have a calculator. The step number first is the production. Grammar is a given, and we have a calculator. The first and follow. Okay. So here we have a calculated. This is the first. This is a follow. How it will create it? Again, you have referred the YouTube channel. Whatever I have already shared the link and all of you. Okay. So on the basis of it, we have a fill this one. Have you anybody have a doubt how to fill this particular table? Have you any questions? Any doubt? Or we move further? No. Please respond. Is it clear by everyone? Anybody have a doubt? क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप को वी हैव परफॉर्म फॉर द स्टैक इंप्लीमेंटेशन. ओके, तो ये स्टेप क्लियर होना चाहिए. इज इट क्लियर बाय एवरीवन हाउ वी कैन फिल दिस वन? यस सर. ठीक है. आई थिंक शिवेंद्र रिस्पॉन्ड और राहुल. But sure, tell me your name also. Okay, that is a virtual platform, so it's very hard to switch and see who is talking to me. Yes. What's your name? Is it clear by everyone? We move further. Yes sir. Yes. Good. चलो ठीक है.
अब देखो यहाँ पे स्टैक हमने सीख चुका था। देखो सिंपल है, क्या करना है, किसी भी ग्रामर व्हाटएवर ग्रामर इज गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द फर्स्ट एंड फॉलो। ओके, हमने पूरा सीखा हुआ है फर्स्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉलो कैसे कैलकुलेट करते हैं। एनीबॉडी डाउट हाउ कैन कैलकुलेट द फर्स्ट एंड फॉलो? एक बार फिर से मैं 1 सेकंड में रिवीजन करता हूँ। फर्स्ट का क्या मतलब है, कोई भी ग्रामर जो भी प्रोडक्शन देता है उसकी फर्स्ट पोजीशन पे जो भी है मुझे टर्मिनल लेना है। फर्स्ट पोजीशन पे जो भी है एज ए फर्स्ट कंसीडर कर लेंगे उसको। इफ इट इज ए टर्मिनल दैट मीन आंसर मिल गया मुझे। अगर वो टर्मिनल नहीं है तो व्हाटएवर प्रोडक्शन इज गिवन हम वहां पे जाएंगे, जो भी वो प्रोडक्शन देता रहेगा उस टर्मिनल को पिक कर लेंगे। ये होता है हमारा फर्स्ट, ठीक। एंड वन मोर कॉन्सेप्ट इज एसोसिएट कि मैं पहले एप्सिलॉन को अवॉइड करता हूँ, वर्स्ट कंडीशन में फर्स्ट में कंसीडर करते हैं, बट इन ए फॉलो वी हैव ए डजंट यूज द एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को कभी भी नहीं लेंगे इन ए वर्स्ट सिचुएशन आल्सो। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं, जिस भी एलिमेंट का मुझे फॉलो निकालना होता है, ओके, उसको पहले मैं राइट साइड में सर्च करता हूँ, जहाँ पे वो एलिमेंट मिलता है जस्ट उसके राइट साइड में जितने भी एलिमेंट होते हैं मैं उसको फर्स्ट निकाल लेता हूँ। ओके, if for example whatever we have considered the particular element is a starting symbol, तो वहाँ पे डॉलर आ जाता है, ठीक है। सेकेंड, व्हाट इज आवर सेकेंड रूल कि जो भी मैं फर्स्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे मुझे फॉलो मिल रहा है जस्ट राइट साइड में कोई एलिमेंट ही अवेलेबल ना हो। तो एलिमेंट नहीं अवेलेबल है ऐसी कंडीशन में जो प्रोडक्शन वो दे रहा होगा जस्ट उसका रिवर्स में फॉलो ले लेंगे। ओके, सेकेंड केस क्या है, यहाँ पे सेकेंड में एक और कंडीशन थी, जो भी प्रोडक्शन है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन डी, ठीक है, जहाँ पे फॉलो मिलता है जस्ट राइट साइड का फर्स्ट निकालते हैं। बट वो पर्टिकुलर प्रोडक्शन अगर हमारे पास क्या प्रोड्यूस कर रहा है, दैट पर्टिकुलर प्रोडक्शन प्रोड्यूस द एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन को इसमें नहीं लेते, फिर से मैं देखूंगा वो प्रोडक्शन कहाँ पे है, फिर उसका फॉलो ले लूंगा। ओके, आई थिंक एवरीबडी इज क्लियर टू यू, क्योंकि हमने कई न्यूमेरिकल्स इस पे सॉल्व करे थे। ओके, तो बेस्ड ऑन फर्स्ट एंड फॉलो। अब ये एक चीज इसको भी सीख लेते हैं कि हाउ वी कैन एंट्री दैट पर्टिकुलर टेबल। देखो जैसे ई है तो ई का प्रोडक्शन, दिस द आवर प्रोडक्शन हियर वी हैव गिवन, ठीक है। ई क्या कर रहा है, जैसे मैं ई का फर्स्ट देख लिया तो ये क्या है, ओपन ब्रैकेट एंड आईडी। तो ओपन ब्रैकेट और आईडी वाले पे जगह पे ये प्रोडक्शन में लिखूंगा। बस मुझे ये देख लेना है अगर मल्टीपल प्रोडक्शन है तो ये आईडी कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, एक सिंगल प्रोडक्शन है तो डिसीजन लेने की कोई बात ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है, सीधे सीधे वही लिख देना है दोनों जगहों पे। देखो यहाँ पे क्या है, आईडी अगर एक सिंगल, इट्स ई प्रोवाइड द सिंगल प्रोडक्शन। ओके, तो ओपन ब्रैकेट और आईडी की जगह सीधे सीधे मैं इसको लिख दिया। ओके, सेकंड क्या है, मेरे पास ई डैश है, ई डैश को भी कहाँ लिखेंगे, प्लस पे लिखेंगे। ये देखो ई डैश और प्लस की लोकेशन पे मैं गया और मैंने क्या किया, ये प्लस वाले प्रोडक्शन को लिख लिया। किसी को डाउट होगा कि सर आपने एप्सिलॉन वाले को क्यों नहीं लिया, क्योंकि बेटा ये जो टर्मिनल का प्लस है वो इस प्रोडक्शन से मुझे प्लस मिलना चाहिए। इज इट क्लियर बाय एवरीवन? जो भी ये टर्मिनल है मुझे इस टर्मिनल से मिलना चाहिए। ओके, दैट्स व्हाई यहाँ पे मैंने प्लस वाले प्रोडक्शन को सिलेक्ट किया, अदरवाइज मैं एप्सिलॉन भी कर सकता था। अब बात क्या होती है कि सर एप्सिलॉन को चूज करिए, चलिए सर मैं एप्सिलॉन को चूज कर लेता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ, बट यहाँ पे तो कहीं एप्सिलॉन दिया ही नहीं है, तो मैं लिखूंगा कहाँ पे, ठीक है। ऐसी कंडीशन में जब एप्सिलॉन दिया हो और यहाँ पे एप्सिलॉन होता ही नहीं है, ये रूल हमने पढ़ा ही हुआ है, ठीक है, इट इज नॉट कंसीडर एज ए वेरिएबल, इट्स नॉट कंसीडर एज ए टर्मिनल आल्सो। ओके, तो ऐसी कंडीशन में ई डैश का फॉलो निकालते हैं। ई डैश का फॉलो क्या है, क्लोज ब्रैकेट एंड डॉलर। व्हाट इज ए क्लोज ब्रैकेट, दिस वन, व्हाट इज ए डॉलर, दिस वन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ई जो ई डैश का प्रोडक्शन है वो यहाँ पे एप्सिलॉन लिख लिया, तो यहाँ पे मैंने ई डैश का प्रोडक्शन एप्सिलॉन लिख लिया। डॉलर के केस में मैंने ई डैश का प्रोडक्शन डॉलर लिख लिया। ओके, गुड, ठीक। आप व्हाट इज और सेकंड स्टेप फिर बाद, हाँ यस, एवरीबॉडी कंप्लीट दिस वन। यहाँ पे कुछ टेबल में भी फिल करना बचा हुआ है, ये सब बचा हुआ था। ओके, हाँ हाँ, प्लीज टोल मी, हाँ टी कहाँ पे लिखा जाएगा प्लीज बताइए आप लोग। बड़े प्रोडक्शन ऑफ टी वी हैव ए जॉब कंप्लीटेड दिस वन। ओके, सो एवरीबॉडी कैन गेट दिस वन। टी का प्रोडक्शन कहाँ पे लिखा गया, ये देखो, चलो मैं, हाँ प्रतीक आप बताइए टी का प्रोडक्शन बेटा कहाँ लिखा जाएगा। ये हमारा टी है, ये प्रोडक्शन कहाँ लिखा जाएगा, दिस लोकेशन, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट एंड आईडी। ओके, एंड वी हैव ए क्लोज ब्रैकेट कहाँ पे है, देखो ये हमारा क्लोज ब्रैकेट है, दिस वन एंड दिस वन। एवरीबॉडी गेट एबल टू सी माय स्क्रीन और नॉट, प्लीज कंफर्म इट। सबको स्क्रीन दिख रही है, प्लीज रिस्पॉन्ड। आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन? यस सर। गुड, तो चलो इसको जल्दी से फिल करते हैं अगर समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, किसी ने फिल किया तो बताओ ना, कि नहीं फिल किया, कुछ पढ़ना होने का टाइम नहीं मिल रहा। सर कर लिया था। कर लिया था, वेरी गुड।
तो बताइए नोट कर लीजिए। चलो ठीक है, आप अपनी कॉपी में मिलाइए वट एवर वी हैव यू हैव सॉल्व। अगर कोई डिफरेंस आता है तो फिर मुझे बताइए कि सर मेरा सॉल्व करने पे ये आ रहा है, आपका सॉल्व करने पे आ रहा है। सो वी हैव डिस्कस्ड कि हाउ इट विल सॉल्व। यहाँ पे ये टी दैट इज ए टी डैश, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग नहीं किए होंगे तो वो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एंड दैट्स द ओपन ब्रैकेट, यस यहाँ पे भी सेम होगा, ठीक है। Everybody can understand how why we have a fill this here. Everyone, if anybody have a doubt, please ask. Best part is that you have clear your doubt right now. Okay. Otherwise, it's the very easy subject and very challenging also. If you feel free to ask and understand each step very well, so it is an easy subject. Otherwise, ये subject बहुत दिक्कत करेगा, ठीक है। But if you understand each step very well, ठीक है, तो वो it's very easy subject and you can score the maximum marks also, full out of full. It is totally mathematical, ठीक है। And that is a T dash. Anyone can tell me where we have inserted this T dash? Except the 3-4 student who's the communicated regularly. Except than that, चलिए प्रतीक आप बताइए where we have inserted this T dash. बताओ प्रतीक is here or not? Let me check how many people is here. I think 61 is there. Parth, प्रतीक से हाँ पार्थ बताओ कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे इसको। ठीक है, देखो मुझे स्क्रीन करने पे फिर से 1-2 मिनट का टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। हाँ इसलिए जब पूछे तो बताते रहिए कहाँ पे इंसर्ट करेंगे ये टी डैश, बोलते रहो। हाँ वेयर वी हैव इंसर्ट दिस, हाँ स्टार पे करेंगे, राइट। चलो मैं करता हूँ, अगर किसी का डिफरेंस है तो प्लीज चल मी, ओके। And here we have that T dash. In a T dash we have find that particular T dash. First of all check the follow, ठीक है। what is your follow? That is a star. स्टार में पुट करेंगे और एप्सिलॉन में पुट करेंगे, तो हमें पता है एप्सिलॉन तो अवेलेबल ही नहीं होता। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, उसको फॉलो ले लेंगे, ओके। पहले मैं स्टार वाले में पुट कर देता हूँ। स्टार वाले में कौन सा पुट होगा, कौन सा प्रोडक्शन, दिस फर्स्ट प्रोडक्शन। व्हाई वी हैव चूज दिस फर्स्ट वन? सर इसको क्यों नहीं चूज किया, क्योंकि मुझे स्टार वहां पे मिलना भी चाहिए, ओके। दैट्स व्हाई वी हैव चूज दिस वन। चलो मैं सॉल्व करता हूँ। तो ये जो टी डैश का प्रोडक्शन है, वी ड्रॉ दिस वन अगेन एंड दिस टी डैश, दिस प्रोडक्शन, here we have inserted the T dash and after that multiplication operator, okay, and F T dash, F T dash, okay. And again we have a check the follow of this one, because the follow of a because the epsilon is not available, so take the follow of a T dash. So here we have a insert the plus, okay, and epsilon, and word again the follow of this one close bracket and dollar, okay. So here we have mentioned the same production is T dash derived from the epsilon. And have you anybody doubt, is it clear by everyone? Okay. Again we have checked the T dash and that particular T dash again derived to the epsilon. चलो अब हम बात करते हैं इसकी F की। F का प्रोडक्शन क्या है, ID and close bracket, okay. We have already known, so that's why here we mention the production of a ID. Is it similar to everyone? Have you find anybody have you difference?
सबका आंसर यही आ रहा है कि किसी का कुछ और भी आ रहा है? किसी का डिफरेंस Yes, आ रहा sir. है? Same. हाँ ठीक है, तो फिर सही है। अगर किसी का डिफरेंस आ रहा है तो बताइए आप। अच्छा, कितने ऐसे जो सॉल्व ही नहीं करते? प्लीज रिस्पॉन्ड कि सर हम तो सॉल्व ही नहीं करेंगे। ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है, मुझे आई नो, क्योंकि इतने आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि यू हैव विजिट द साइट एंड रिवीजन ऑल द वीडियो, हाँ, जिसमें आपकी डाउट हो। तो मोस्टली 3 4 5 बंदे ही जाते हैं वहाँ पे, दैट मीन विजिटेड बाई ओनली 3 4 5 स्टूडेंट। तो प्लीज़ वो दिक्कत हो जाएगी, थोड़ा सा मेहनत करिए, ठीक है। चलो, so that is our parsing table. If anybody told we construct the LLM parsing table, we have a make this particular table. Okay. So now we have a move one more step to how the stack implementation. Okay. This is our first step. Okay. This is the step number first. Okay. Why did I mention the step number first? Because the it's required. It is we have calculated the first and follow. We have a calculated again, that's why it is we have a written in the below part, but in a numerical you have calculated first and follow first. Okay, that's why we have mentioned this is a step number first. This is the step number first, and above is the step number 2, because we have already mentioned the first and follow. Here we mentioned the step number first, and this is the parsing table, step number 2. After that we have a learned stack implementation, and then parse tree. Okay, this is the stack parse tree already mentioned in the step number 2. Anybody can already mention the stack implementation? Yeah, have you any idea about how to implement the stack? Anyone? किसी ने पहले से implement किया क्या? Stack implementation में try किया हो? शिवेंद्र, वंशिका, रिया and स्टैक yes. इम्प्लीमेंटेशन से नहीं, मैंने दूसरा एक एक दूसरा चैनल था, उसमें एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स भी डिराइव किया। Abstract मैं syntax से स्टैक की derive किया जरूरत था। नहीं पड़ी इसमें। पार्ट नहीं, अभी यहाँ पे करेंगे क्योंकि यहाँ पे इन्होंने रिस्ट्रिक्टेड किया है, ठीक है। तो इस चीज का भी बहुत ध्यान देंगे कि क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है। अगर जैसे वो पूछ रहा है तो उससे भी कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स से। इट्स चलो यहाँ पे सीखते हैं, बट वो दैट इज अ डिफरेंट ऑफ सिनेरियो, बट हियर वी विल डिस्कस हियर द स्टैक इंप्लीमेंटेशन। इट्स द इंपॉर्टेंट टॉपिक। Sometimes in questions ask like that कि calculate the stack implementation of this particular grammar. Okay, then try to learn it. कैसे करते हैं इसको? Have you any questions, anybody? Otherwise we move further. Here we have into the stack, and after here we take the input, and after here we take the production. Okay, there are 3 row we have a defined into here. Stack. चलो ठीक है, जब भी आए तो we have a make some table. It's very good to differentiate for input, production, all these things. Okay, तो यहाँ पे कर दो, इसको ध्यान से समझना। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इफ यू हैव लर्न इट, एक बार ध्यान से आप समझ लेंगे तो एक चीज की तो मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आप ध्यान से बोर्ड पे फोकस करके समझेंगे तो यू हैव डोंट हैव एनी डाउट। ओके, वो सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। हियर वी हैव ट्राई टू सॉल्व इट हाउ इट इज वर्क। ओके, क्योंकि व्हेनेवर वी हैव इम्प्लीमेंटेड द स्टैक, ठीक, तो पहला स्टार्टिंग सिंबल क्या है? ध्यान से समझो, ध्यान से देखो, ग्रामर में क्या दिया हुआ, दैट इज ई, ठीक। सो हियर वी हैव इंसर्ट द कैपिटल सिंबल ई एंड एसोसिएटेड विद द डॉलर आल्सो। डॉलर को क्यों ले रहे हैं अभी बताते हैं आपको। And here take the sub input string id and plus id multiply id
एंड डॉलर। ठीक है, जब भी अब देखो स्टैक इम्प्लीमेंटेशन में हम करने क्या वाला है, वी हैव ए ट्राई टू चेक इट कि वी हैव ए एबल टू डिराइव द पार्स ट्री और नॉट। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन की हेल्प से मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि जो भी मैंने ऊपर वो LL1 पार्सिंग टेबल बनाया है, सारी चीजें बिल्डअप किया, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं उसका पार्स ट्री भी ड्रा कर पाऊंगा। इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो स्टैक है उसमें भी डॉलर रखते हैं और इनपुट में भी डॉलर रखते हैं। ओके, और स्टैक को स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, उसकी स्टार्टिंग सिंबल से। तो स्टार्टिंग सिंबल डॉलर और इनपुट स्ट्रिंग अब फिक्स करते हैं या गिवन होता है। ओके, दोनों हो सकता है। मे बी इन ए क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन द इनपुट, वी हैव सेलेक्टेड द इनपुट स्ट्रिंग दिस। अगर वो नहीं दिया है तो हम एज्यूम भी करेंगे, बट मोस्टली केस में आप सोचिए 99.999 केसेस में आपको इनपुट स्ट्रिंग गिवन होगा, जिसके लिए आपको स्टैक इम्प्लीमेंटेशन या पार्स ट्री डिराइव करनी होगी। अगर नहीं दिया है तो मैं कोई भी स्ट्रिंग लूंगा, वो स्ट्रिंग जो पर्टिकुलर वो ग्रामर डिराइव करता है उसको मैं पिक करूंगा और उसके बेसिस पे डिराइव करूंगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि विदाउट इनपुट स्ट्रिंग वी हैव डिराइव ऑल दिस थिंग्स। ओके, तो इनपुट स्ट्रिंग तो हमें लेनी होगी, इसीलिए वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं तो वहाँ पे इनपुट स्ट्रिंग गिवन है। ओके, चलो अब हमें करना क्या है, हम ये देख विद द हेल्प ऑफ ए स्टैक इम्प्लीमेंटेशन वी हैव ए ट्राई टू आइडेंटिफाई कि वी हैव ए एबल टू डिराइव द पार्स ट्री और नॉट। कैसे मैं पता करूंगा कि पार्स ट्री डिराइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मैं प्रोडक्शन को यूज करते हुए, व्हाट इज ए प्रोडक्शन, व्हाट इज ए ग्रामर इज ए गिवन, उसकी हेल्प से हम प्रोड्यूस करेंगे और इसको क्या करेंगे, रिड्यूस करते करते हम यहाँ पे जाएंगे डेरिवेशन करते हुए। बिकॉज व्हाट इज ए स्टैक, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन ये किसका है, LL1 पार्सिंग टेबल का। व्हाट इज ए LL1 पार्सिंग, इट इज ए टॉप डाउन और बॉटम अप, प्लीज रिस्पॉन्ड, इट इज ए टॉप डाउन और बॉटम अप। LL1 parser is it top down or bottom up? Are you here? Please respond. Shivendra, are you here? Is it audible? टॉप डाउन सर। Yes, top down. What is the meaning of a top down? Start from the root. इसीलिए मैं पहले क्या कर रहा हूँ, E को सेलेक्ट कर रहा हूँ। सबको समझ में आ रहा है यहाँ पे E क्यों सेलेक्ट किया। अब इसको डिराइव करते हुए मुझे क्या चाहिए, अगर स्टैक में भी डॉलर मिलता है और इनपुट में भी डॉलर आ जाता है, ध्यान समझो, स्टैक में भी डॉलर हो गया और इनपुट में भी डॉलर हो गया, इसको रिड्यूस करते करते, इसका मतलब वी हैव इजीली डिराइव द पार्स ट्री। ठीक है, करके देखते हैं इसको। और मैंने यहाँ पे E क्यों चूज किया, क्योंकि ये टॉप डाउन पार्सर है स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट, इसीलिए मैंने E के रूट को चूज किया। अब चलो ध्यान से समझते हैं इसको करते कैसे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आई थिंक। ठीक है, एक बार देख लो। हाँ, इज इट क्लियर। चलो अब देखो यहाँ पे करते कैसे हैं। ई का प्रोडक्शन क्या है, ध्यान से देखो, एनीवन कैन सी द प्रोडक्शन ऑफ ए ई। देखो कैसे करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ ई का प्रोडक्शन क्या है, सी द प्रोडक्शन ऑफ ए ई, ई डैश, इज इट क्लियर, टी ई डैश। तो हम यहाँ पे ई का प्रोडक्शन यहाँ पे लिख लेंगे। क्या होगा टी का प्रोडक्शन, हियर वी हैव मेंशन द, here we have mentioned the T E dash. Is it clear by everyone? कहाँ से आ रहा है ये T E dash? जो E का डेरिवेशन है, प्रोडक्शन है, वो मैंने लिख लिया। ओके, अब यहाँ पे जो इनपुट स्ट्रिंग है, इनपुट स्ट्रिंग तो सेम होगी यहाँ पे। ठीक है, ID बस। अब हमें करना क्या है, इसको डिराइव करते हुए मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे भी डॉलर आए और यहाँ पे भी डॉलर आए। अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो इसका मतलब वी हैव एबल टू डिराइव द पार्ट्स, अदरवाइज नॉट। ओके, तो ये वाली स्ट्रिंग तो एज इट इज कॉपी हो जाएगी। चलो मैं कॉपी कर देता हूँ, देयर इज नो चेंज।
एंड व्हाट इज द प्रोडक्शन हियर वी हैव यूज्ड, प्लीज ध्यान दो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्शन यूज हुआ हमने, P derived to P dash. Is it clear? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखो ग्रामर को भी देखना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ग्रामर में मैं क्या प्रोड्यूस करूँ, ठीक है। व्हाट इज डेरिवेशन ऑफ ए टी, टी क्या प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे देखो, व्हाट इज ए टी प्रोड्यूस ऑफ ए टी, एफ टी डैश। ओके, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं कि किस पे ये जाके आईडी से रिड्यूस हो जाएगा, दोनों में कॉमन आ जाएगा, फिर हम उसको रिड्यूस करेंगे। देख तो अभी मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ। तो टी क्या हो जाएगा, एफ टी डैश। सो हियर वी हैव मेंशन द एफ टी डैश and after that T dash, and again here we mention the dollar. There is no changes in the input string. Input string का तो कोई changes नहीं है हमारे पास। What is a production? Anybody can please tell me? That is a T, okay, derived to FT dash. I hope it is clear by everyone. सिर्फ सीधे सीधे एक्सपेंशन करते चले यार। What is your next one? What is your next one? FT dash E dash. अब हमारे पास क्या मिला, FT। देखिए here the F derived for the ID, okay, F derived the ID. So here we have again mentioned the this is a small ID, it is the ID and T dash, ID T dash, and after that E dash, okay, and again we have a find out the dollar. फिर यहाँ पे जो इनपुट स्ट्रिंग है इज इट सेम। अब देखो इसको रिड्यूस कैसे करेंगे, ये यहाँ पे ध्यान से समझने की बात है। अब यहाँ पे भी मुझे आईडी मिला, ठीक है, इनपुट में भी आईडी मिल गया और स्टैक में भी आईडी होगा, तो दोनों को हम कैंसिल कर देंगे। आईडी दिस आईडी एंड दिस आईडी से कैंसिल। एंड व्हाट इज द प्रोडक्शन वी हैव यूज्ड हियर, एफ डिराइव टू आईडी, ओके, एफ डिराइव टू आईडी। इज इट क्लियर बाय एवरीवन? चलो काटने की जरूरत है, इसको रुको मैं कट कर देता हूँ। Again we will choose some narrow line also, ठीक है। This ID and this ID is the cancel. Is it clear? Please respond. This ID and this ID cancel. जो सिमिलर मैच होगा उसको मिटा देंगे, ओके। अब यहाँ पे क्या मिल गया हमारे पास, देखो नेक्स्ट प्रोडक्शन क्या होगा, T dash E dash, लिख लीजिए, everybody can write this, T dash E dash dollar, and after that plus ID multiplication ID dollar, and this is the same, ठीक। अब हम यहाँ पे करते हैं, चलो मुझे लिख लेता हूँ, चलो मैं व्हाट इज द नेक्स्ट वी हैव गेट, चलो इसको सॉल्व करते हैं पूरा। अच्छा, व्हाट इज द नेक्स्ट वी हैव गेट, दैट इज अ T dash, okay, and E dash, and after that we have get the dollar. Is it clear? और व्हाट इज इनपुट स्ट्रिंग वी हैव गेट, अब यहाँ से आईडी हट जाएगी। इज इट क्लियर? क्योंकि आईडी से आईडी क्या हो गई थी, कैंसिल हो गई थी ऊपर। अब यहाँ पे कोई प्रोडक्शन लिखेंगे नहीं, मैंने जस्ट इसको कॉपी किया है, तो प्रोडक्शन लिखने की तो कोई जरूरत ही नहीं बनी, ठीक। अब हम बात करते हैं क्या इसकी, टी डैश की। और देखो टी डैश क्या डिराइव कर रहा है, देखिए T derive the two things, ठीक है, एक मल्टीप्लिकेशन और एक एप्सिलॉन। बट हमें किसकी तरफ जाना है, हमें तो प्लस की तरफ जाना है, क्योंकि इसको रिड्यूस ही तभी होगा, ठीक। तो इफ वी हैव टेक द T डैश एज एप्सिलॉन, तो फिर क्या होगा, ये T डैश यहाँ पे फिनिश हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, आईडी चाहिए ना। तो अगर मैं मल्टीप्लिकेशन से जा रहा हूँ तो कोई मतलब है नहीं यहाँ पे, क्योंकि आईडी इसको रिड्यूस करना है मुझे, ठीक।
So here we have a check this one, the E dash, and dollar. Here there's the E dash dollar, and the input string same. सबको समझ में आ रहा है ये? Everybody can get this point or not? Please respond. How, Mansika? Are you get this point? Yes, sir. Good. और बाकी लोग, प्रतिभा and something other student. Yes, sir. चलो पढ़ाई कर रहे हो आप लोग। जिसको समझ में आ रहा है इसका मतलब कुछ इनपुट वो भी दे रहा है ना। देखिए ऐसा नहीं है कि कुछ को समझ में आ रहा है कुछ को नहीं आ रहा है, जो पढ़ देगा उसी को समझ आएगा। समथिंग लिटिल बिट लॉजिकल होगा, तो थोड़ी सी पढ़ाई की जरूरत पड़ेगी। सो हियर वी हैव मेंशन द एप्सिलॉन। तो आप लोग पूरा डेरिवेशन कर लो, इसका पूरा करने की जरूरत है मुझे कि एक की आप कहते हो सर एक बार इसको कर दें हम, बताइए क्या आप कहोगे सर मैं कर लेता हूँ या कर लेती हूँ? ठीक है, आर यू एबल टू सॉल्व इट, और मैं एक बार पूरा सॉल्व कर दूं, बताइए। बोलो। अब ई डैश से मैंने क्या किया, फिर प्लस टी ई डैश को कंसीडर किया, क्योंकि मुझे क्या करना है, इस प्लस वाले को रिड्यूस करना है। ओके, अगेन वी हैव फाइंड आउट दिस डॉलर हियर, व्हाट इज द इनपुट स्ट्रिंग, अगेन वी हैव फाइंड आउट, वी हैव फाइंड दिस प्लस से प्लस फिर से कैंसिल होगा। इज इट क्लियर? सिंपल है, बस एक बार ध्यान से समझना है कि करना क्या है इसमें, ठीक है, उसके बाद हम समझ जाएंगे। अब इस प्लस से प्लस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द प्रोडक्शन, दैट दिस प्रोडक्शन वी हैव यूज्ड, चलो मैं लिख देता हूँ। वी हैव फाइंड आउट द ई डैश प्लस टी ई डैश। इज इट क्लियर? आई होप सो। इज इट क्लियर? फिर क्या होगा, इस प्लस से प्लस कैंसिल होगा, कैंसिल कर देता हूँ। Again we have found this plus cancel, this plus cancel। ओके, जो दोनों में सिमिलर मिले हटा देंगे। अब मुझे क्या मिल गया, t मिल गया, ठीक है। t को मैं क्या कर दिया, ft डैश कर दिया। अगेन so again we have to find out here ft dash and ऊपर से e dash कॉमन हो गया, and we have to find out the dollar here। And what is your production here? Please tell me, anyone. As an input, what we get? Here get the ID, ये प्लस और ये दोनों रिड्यूस हो चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पे हम और पहुँचते हैं कि नहीं। एंड व्हाट इज सेकंड प्रोडक्शन वी हैव चूज, यहाँ पे आईडी की वैल्यू रख दें क्या, यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक कर दें? इज इट रिक्वायर्ड टू एनीवन? चलो यहाँ पे एक स्टेप मैं आगे का लिख देता हूँ। मे बी एफ डी आ गया, आपने लिख लिया ना, टी डैश द एफ टी डैश, ठीक है। अगेन वी पुट द एफ रिप्लेस विद द आईडी, ठीक है। एक स्टेप आगे करके मैं लिख दे रहा हूँ, आईडी यहाँ पे मिल गया, जिससे रिड्यूस जल्दी हो जाए। ओके, फिर यहाँ पे हमें क्या मिल गया, एवरीबॉडी गेट दिस स्टेप, एक स्टेप मैंने यहाँ पे आगे का लिख दिया है, कुछ नहीं। ये टी क्या कर रहा है, एफ टी डैश डिराइव कर रहा है और एफ की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। इज इट क्लियर? ठीक, फिर से क्या होगा, आईडी से आईडी कैंसिल हो जाएगा, उसको कैंसिल करना है इसीलिए तो लिखा मैंने, ठीक है। इज इट कैंसिल दिस वन, कैंसिल, ठीक है। फिर अगेन वी हैव गेट द टी डैश ई डैश दिस वन, फिर वी पुट द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, ठीक। तो हियर वी हैव फाइंड द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, put the value of a disk t dash f t dash t dash and dollar, sorry it's the capital letter, f t dash t dash and again dollar।
ओके, अब हमारे पास क्या मिला, ये मल्टीप्लिकेशन का ये दिस वन, वी हैव फाइंड आउट ओनली दिस वन. So here we have mentioned the T dash. यहाँ पे जो प्रोडक्शन हमने डिराइव किया है उसको लिखेंगे T dash and multiplication FT dash. क्लियर. अब फिर मैं क्या करूंगा, FD की फिर से वैल्यू रख दूंगा ID. इज इट क्लियर? एंड ID and here the this one multiplication operator is a cancel. चलो मैं इसको भी कर देता हूँ. मैं इतनी इजी सारे स्टेप्स इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप भी इसको समझ जाएं. ठीक है. अगेन वी पुट दिस वन ID पुट कर लेंगे कि नहीं, F की वैल्यू ID करेंगे. हियर नेक्स्ट स्टेप पुट हियर द ID. चलो मैं एक स्टेप ज्यादा लिख रहा हूँ यहाँ पे. पुट हियर द नेक्स्ट स्टेप इज द ID. ओके, एंड राइट इन द प्रोडक्शन ID हियर. समझ में आ रहा है? ID हियर. तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे लिख देंगे. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, F डिराइव टू ID. दिस वन F डिराइव टू ID. फिर ID टू ID से भी यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा. इज इट क्लियर? ID से ID भी यहाँ पे कैंसिल हो रहा है. व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप? फिर मेरे पास क्या मिल गया, ठीक है. F की वैल्यू मैंने ये पुट कर दी थी, T डैश एप्सिलॉन. चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. और ये नेक्स्ट स्टेप, हियर द नेक्स्ट स्टेप F इज इन्वॉल्विंग टू F इज इन्वॉल्व टू एज ए ID. ठीक है. दैट्स व्हाई ये ID से ID कैंसिल हो गया. फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, T डैश होगा. T डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन हो जाएगी. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, T डैश, द T डैश डिराइव द एप्सिलॉन. ओके. ठीक. व्हाट वी हियर वी गेट, हियर वी फाइंड आउट दिस वन. ठीक है. एक बार ID की वैल्यू पुट होगी, फिर T डैश की वैल्यू पुट होगी. तो here we have again we have get the E dash and after that dollar, sorry dollar. Here we have for the dollar. Okay, and what here we have get at that time is the dollar. अब हमने आपको क्या बताया, ये डॉलर हो जाए और ये भी डॉलर हो जाए, इसका मतलब वो एक्सेप्टेबल कंडीशन में है. यहाँ पे क्या T डैश की वैल्यू भी हमने पुट कर. अब E डैश की वैल्यू क्या है बताओ. E डैश इज ऑल्सो डिराइव एप्सिलॉन. E डैश की भी वैल्यू हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, E डैश इज ऑल्सो डिराइव्ड दैट इज ए स्टैक इम्प्लीमेंटेशन. ओके, स्टैक. अब यहाँ पे एप्सिलॉन पुट कर लेंगे तो व्हाट आउटपुट वी गेट, दैट इज ए डॉलर. हियर वी हैव फाइंड आउट द डॉलर. हमने आपको क्या बताया, फ्रेंड स्टैक और इनपुट स्टैक दोनों में डॉलर है. इसका क्या मतलब है, वी हैव एबल टू डिराइव दिस वन. ओके, यहाँ पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दी तो फिर फाइंड आउट दिस वन. इज इट क्लियर बाय एवरीवन? सो दैट इज ए वी हैव एबल टू डिराइव द पास ट्री. किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, अदरवाइज फिर मैं इसके पास ट्री भी बनाता हूँ. सर यहाँ पे जब T डैश की जगह एप्सिलॉन रखा था तो एप्सिलॉन यहाँ पे लिखेंगे नहीं ना स्टैक में? यहाँ पे लिखेंगे ना. यहाँ पे एप्सिलॉन तो इसी से मल्टीप्लाई हो गया तो ये खत्म हो गया. लिख दूं क्या मैं, जैसे F की वैल्यू मैंने ID रख दी. ठीक है, ID से ID कैंसिल हो गई. पहले ये मल्टीप्लिकेशन कैंसिल हुआ, फिर F की वैल्यू ID लिखी. ठीक है, मैं इसको सर्कल कर देता हूँ. ओनली दिस F की वैल्यू हमने लिखी. इनपुट कैसे अज्यूम करेंगे? हाँ, इनपुट गिवन होगा. सर ये इनपुट गिवन फर्स्ट वो होगा ना जो एस मेन होगा उसी का डेरिवेशन. इनपुट दिया जो ग्रामर है मोस्टली केस में इनपुट आपको दिया होगा, गिवन होगा. अगर नहीं दिया तो मैं एक कोई भी स्ट्रिंग वो ले लूंगा जो उस ग्रामर को सेटिस्फाई कर रहा है. ओके सर. हाँ, बट मोस्ट केस में आप समझिए कि 99.99 केस में वो गिवन होगा मुझे. आप प्लीज, कोई क्वेश्चन पूछ रहा था.
अब देखो हमारे पास फिर क्या बचा, टी डैश, तो हमने टी डैश एफ की वैल्यू आईडी रखी थी पहले, देखो एफ की वैल्यू आईडी रखी, एक स्टेप कैंसिल हुआ, वो लिखने की वजह से। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या क्या है, टी डैश, तो यहाँ पे एप्सिलॉन लिखोगे, एप्सिलॉन में किसी प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज आइडेंटिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैथमेटिक्स, ओके, तो सेम प्रोडक्शन मिलता है। फिर मुझे क्या मिल गया, ई डैश डॉलर, फिर हमने क्या किया, ई डैश की एप्सिलॉन फिर से प्रोड्यूस करा था, फिर यहाँ पे डॉलर मिल गया, ये डॉलर डॉलर, दैट मीन व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ दिस वन, दैट इज द इंडिकेशन वी हैव इजीली डिराइव द पार्स ट्री, इट इज अ सक्सेसफुल। अब इसको पार्स ट्री भी ड्राइव करना बहुत आसान है, कैसे, यहाँ पे रूट क्या हो गया, ई के बाद मैं क्या लिखूंगा, टी ई डैश, फिर टी को फिर से अगेन फर्दर डिराइव, टी डिराइव टू एफ टी डैश, फिर एफ अगेन डिराइव टू आई डी, फिर टी डैश की, हाँ फिर टी डैश पुट दिस एप्सिलॉन, फिर ई डैश प्लस टी, हाँ अगेन ये प्रोडक्शन ना इसके हिसाब से फिर करते चले जाएंगे, तो हमें सक्सेसफुली ड्रॉ हो जाएगा। चलो उसको ड्रॉ करो, कि मैं ड्रॉ कर दूं, बताओ, चलो मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ओके। स्टेप नंबर 4, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, एक बार रिवीजन कर लो और इसको, ठीक है, हाउ इट विल सॉल्व एंड ऑल दिस थिंग्स, एंड अगेन द हेलो यस, सर, स्टैक में जो फिफ्थ वाले कॉलम पे किसमें प्रॉब्लम है, सर राघव, हाँ राघव, यस बताइए। सर इसमें टी डैश की जगह हमने एप्सिलॉन क्यों लिया है, वो क्यों नहीं लिया स्टार एफ टी डैश? टी डैश की जगह क्या नहीं दिया हमने, और मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं लिया, हाँ क्यों नहीं लिया? हाँ देखो यहाँ पे ये देखिए, ये जो टी डैश का प्रोडक्शन है राघव, देयर आर ए टू प्रोडक्शन, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन। हाँ आप कह रहे हैं सर मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ले सकते हैं, तो पहले मेरा अप्रोच क्या होगा कि स्टैक में भी डॉलर है और जो इनपुट है वो भी रिड्यूस होकर डॉलर हो जाए, ठीक। तो अगर मैं मल्टीप्लिकेशन चूज करता हूं तो क्या कभी पॉसिबिलिटी बनती है उसको रिड्यूस होने की, जो भी नहीं, इनपुट स्ट्रिंग दिया है, क्योंकि मेरा टारगेट क्या है, इन पार्सर करता क्या है, इट इज डिराइव द स्ट्रिंग, लेकिन एक टारगेट भी तो होगा, किसको डिराइव कर रहा है, वो डिराइव कर रहा है इनपुट स्ट्रिंग को, क्लियर। तो हम एक बार ट्राई कर रहे हैं कि उसको मैच कर जाए, नहीं मैच करेगा तो इसका मतलब वो पार्स ट्री डिराइव नहीं कर सकेगा, दैट्स व्हाई वी हैव चूज दिस वन। इज इट क्लियर बाय एवरीवन? ओके सर। हाँ गुड, और एनीबॉडी किसी डाउट? गुड, देखो जो डाउट जिनको आ रहा है ना उनका मतलब उनको समझ में आ रहा है, जिनको एकदम डाउट नहीं है मतलब कुछ नहीं आ रहा उनको, ऐसा है क्या कि सबको आ जा रहा है? इज इट क्लियर? चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, दैट इज स्टेप नंबर 2, द स्टेप नंबर 4, क्या करते हैं, पार्स ट्री डिराइव करते हैं, ड्रॉ द पार्स ट्री। आई थिंक एक क्लास और होगी मेरी, तो पार्स ट्री आप डिराइव कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में आप कहेंगे तो मैं डिराइव कर दूंगा, या तो चाहिए तो कर देता हूँ। क्या होगा पहले राघव बताओ जल्दी जल्दी, यहाँ पे हो गया ई, ठीक, क्योंकि टॉप डाउन पार्सर है पहला वाला, ये पहला प्रोडक्शन क्या डिराइव कर रहा था हमारे पास, सर इट इज डिराइव द टी एंड ई डैश, ठीक है, यही तो कर रहा था, सॉरी इसको मैं नीचे ले लूँ, ये हो गया ई डैश, व्हाट इज द नेक्स्ट वन, फिर ये टी को फिर से किसमें डिवाइड होगा, ये एफ टी डैश, वो जो कहाँ से लिखेंगे, जो स्टैक अभी इम्प्लीमेंट किया है, मैं भी बता रहा हूँ आपको, एफ टी डैश, देखो ये कहाँ से लिखेंगे मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग लिख लो, यहाँ से जो अभी मैंने डिराइव किया, ये दिस वन, ओके। यहाँ पे क्या ई है, ई के बाद ये ई किसमें ओपन हुआ, दैट इज ए टी ई डैश, फिर से मैंने वहाँ पे टी ई डैश पुट किया, फिर आफ्टर दैट टी इज एक्सपेंडेड, ओके, टी एक्सपेंडेड द दिस वन, इट इज आवर सेकंड प्रोडक्शन, आफ्टर दैट वी पुट जो भी वैल्यू दिया सेम एज इट इज वैल्यू पुट कर देंगे, ओके। और उसके बाद हम देखेंगे कि जब हम उसको ट्रेवल करेंगे तो आई डी प्लस आई डी मल्टीप्लीकेशन डी मिल जाएगा हमारे पास। इज इट क्लियर? सब लोग इसको ड्रॉ करो, ओके। तो ठीक है, here we have stopped the recording also and check your attendance.